Dear students, I am Dr. Suman Sharma teaching you these days monosaccharides. Many types of compounds in this category have been taught in the last lectures. The interconversion of glucose and fructose was the matter of last lecture. Now, today we will study the muta-rotation of reducing sugars. Now, what is muta-rotation? Muta-rotation को हम परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन भी कहते हैं. The spontaneous change that take place in the optical rotation of alpha and beta anomers of a sugar when they are dissolved in water. The optical rotation of the sugar change until they reach the same value. The explanation for this muta-rotation lies in the existence of an equilibrium between the open chain form of D plus glucose and the alpha and beta forms of the cyclic hemiacetals. The concentration of open chain D plus glucose in solution at equilibrium is very small, right? अब हम यदि इसको बताएं कि परिवर्ती घूर्णन क्या होता है. जब अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो उसके विशिष्ट घूर्णन का मान धीरे धीरे 112.2 डिग्री से 52.5 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है. जब बीटा डी ग्लूकोज को जल में घोला जाता है तो उसके विशिष्ट घूर्णन का मान धीरे धीरे प्लस 18.7 डिग्री से प्लस 52.5 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है. इस प्रकार किसी भी एनोमर मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को जल में घोलते हैं तो समान विशिष्ट घूर्णन यानी 52.5 डिग्री प्राप्त होता है. अतः परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं. किसी भी ध्रुवण घूर्णक मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन में क्रमिक धीरे परिवर्तन को परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं, राइट? अब when a sugar is dissolved in water, the specific rotation of the solution gradually change until it reaches to a constant value, right? For example, freshly prepared solution of glucose has a specific rotation plus 112 degree. When this solution is allowed to stand, the rotation falls to 52.7 degree and remains constant at this value. ठीक है, 112 से जो है इसका रोटेशन जो है वो 52.7 पर फिक्स हो जाता है. This change in the specific rotation is known as the muta rotation phenomena, right? ये अभी हमने आपको पहले बताया है. All reducing sugar except a few ketos undergo muta rotation, right? सारी जो रिड्यूसिंग शुगर हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करती हैं. फिर है आपका द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज shows the specific rotation plus 113 degree. This value however decrease gradually the passage of time and reaches a fixed value of 52.4 and 5 degree. The beta glucose on the other hand shows initially a specific rotation plus 19 degree. This value steadily increase till the reaches from 19 degree to 52.5 degree. This change decreases or increases in value of optical rotation with time is called muta
rotation. The equilibrium mixture contains 38% of alpha glucose and 62% of beta glucose. ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको शो कर रखा है. इट इज़ अल्फा ग्लूकोज. यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है वो क्या है आपका 52.5 डिग्री, और यहाँ पर ये है बीटा ग्लूकोज. ठीक है ना. अल्फा ग्लूकोज जो है उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना प्लस 113 डिग्री है ना. बीटा जो ग्लूकोज है उसका प्लस 19 डिग्री. और जब ये रोटेट करता है, जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये 52.5 डिग्री हो जाता है. ठीक है ना. और यही जो है ना, दिस चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन. दिस इज अ जो है म्यूटा रोटेशन. फिर आता है लॉरी सजेस्टेड दैट द म्यूटा रोटेशन ऑफ आइदर form of glucose take place through the formation of an intermediate. It is only possible in presence of an amphiprotic solvents, जैसे solvent which can function both as an acid and a base. ठीक है ना. यहाँ पर हम जो है हम एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करता है. इन द सॉलिड स्टेट बोथ द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर स्टेबल. व्हेन आइदर फॉर्म in its place in solution is slowly changes to the other via the open chain aldehyde form and gradually change in its specific rotation till an equilibrium established between the two forms. ठीक है. The final value is plus 52.2 degree is the equilibrium mixture of alpha and beta forms of glucose. It is a equilibrium temperature for the mixture of alpha and beta forms of glucose. The equilibrium mixture does not contain equal amount of two enantiomers. ठीक है ना. These are two enantiomers. ये यहाँ पर हमने इसको शो कर रखा है. ठीक है. यहाँ पर टाइम है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर जो है हमने टेम्परेचर जो है उसको शो कर रखा है. ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस 113 डिग्री, बीटा डी ग्लूकोज प्लस 19 डिग्री, और जो इक्विलिब्रियम जो वो है किस जो है दैट टेम्परेचर इज 52.2 डिग्री. राइट. डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज ऑफ मोनोसैकेराइड्स. In the cyclic structures of alpha and beta glucose, oxygen has been shown as joining together at C1 and C5 positions. That is, these compounds are represented as containing 6-membered rings. Right? ये जो यहाँ पर जो है हम अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो C1 या C5 कार्बन पर ही पोजीशन पर ही हो सकती है. और वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो 6 मेंबर जो है कार्बन कंटेनिंग रिंग होती है. व्हाट इज़ द एविडेंस दैट दीज कंपाउंड्स एक्चुअली कंटेन अ 6 मेंबर रिंग? दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द मिथाइलेशन मेथड. ठीक है ना. हम इसको मिथाइलेशन मेथड से बता सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो उसके अंदर जो है 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है. अब ये है मिथाइलेशन मेथड. मिथाइलेशन मेथड जो है वो सबसे पहले हावर्थ और हिज साइंटिस्ट ने 1923 के अंदर बताया था, इसलिए हम इसको हावर्थ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं. इन दिस मेथड द शुगर इज़ कम्प्लीटली मिथाइलेटेड टू मिथाइल ग्लूकोसाइड. ठीक है ना. इसके अंदर जो शुगर है, जो ग्लूकोज है या जो भी आपकी शर्करा है, वो पूरी तरह से जो है मिथाइल ग्लूकोसाइड के अंदर परिवर्तित हो जाती है. व्हेन मिथाइल डी ग्लूकोसाइड इज ट्रीटेड विद मिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज हाइड्रोलाइज्ड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड. दिस कंपाउंड इज अ साइक्लिक हेमी acetal which in solution exist in equilibrium with the open chain form. राइट. इसको अभी हम बताते हैं आगे रिएक्शन के अंदर. दिस ओपन चेन टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड 4 OCH3 ग्रुप यानी मिथॉक्सी ग्रुप्स. इट ऑल्सो कंटेन्स अ फ्री अनमिथाइलेटेड OH ग्रुप. राइट. दिस कार्बन, ठीक है ना,
to which OH attached was originally involved in the acetal ring from on C5 if the 6-membered ring is correct, right? ये हमने यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। इट इज़ हेमी एसिटल, ठीक है ना। और यहाँ पर जो R है ये कोई भी आपका H ग्रुप, R में भी H, कोई ये H ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर इसका जब हम रिडक्शन, यहाँ पर जब हम की एसिडिक मीडिया में इस रिएक्शन को करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ R-OH, तो यहाँ पर हमको एसिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या हुआ, एसिटल फॉर्मेशन हो जाता है और पानी अलग निकल जाता है। अब हम हेमी एसिटल की बात करें तो हेमी एसिटल क्या होते हैं? हेमी एसिटल अ फंक्शनल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू एन alkoxy group. It is a OR is a alkoxy group, right? And to a hydroxyl group. फिर ये जो है OR जो है वो OH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हेमी एसिटल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एडिंग 1 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ एन अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, राइट। ये जो है आपके हेमी एसिटल्स हैं, इनको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? 1 मोल अल्कोहल का लेकर के या जो है उस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको हेमी एसिटल्स मिल जाते हैं, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन, इन विच कार्बन कैरीज द फ्री OH ग्रुप, ठीक है। फ्री OH जो ग्रुप है वो किस कार्बन पर प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है। इफ द टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोज इज विग्रसली oxidized by nitric acid, the CHO and the free OH group should be oxidized to yield a keto acid, and this keto acid should be cleaved on one side or the other side of the carbonyl group to give trimethoxyglutaric acid and dimethoxysuccinic acid, that is a mixture of 5 carbon and 6 carbon acids and formed only by cleavage on either side of C5 carbon, right? And therefore it must be C5 that carries the carbonyl oxygen of the intermediate keto acids and the free OH group in the tetramethyl D glucose. It means that the C5 is involved in the acetal ring formation of the original glucosides. Hence, methyl D-glucoside must contain a 6-membered ring. ठीक है, this ring structure can now explain all the objections against open chain structure and other properties of glucose. ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है। ये क्या है? अल्फा मिथाइल डी ग्लूकोस, ठीक है। यहाँ पर इसका जब मिथाइलेशन करवाया जाता है डाईमिथाइल सल्फेट की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या है? पेंटामिथाइल डी ग्लूकोस, ठीक है। यहाँ पर क्या बना आपका? पेंटामिथाइल डी ग्लूकोस, ठीक है। ये जो है यहाँ पर OH जो है, OH के H का जो रिप्लेस है वो किससे हुआ है? CH3 ग्रुप से, राइट। यहाँ पर जो है H इज रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, ये क्या हो गया? पेंटामिथाइल डी ग्लूकोस, राइट। फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमको क्या मिलता है? टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? टेट्रामिथाइल मीन्स 1 CH3 2 CH3, ठीक है, 3 CH3 एंड 4 CH3। हाइड्रोलिसिस पर क्या होता है? हमको जो है टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोस मिलता है, राइट। और ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर जो है ये जो प्रोडक्ट है ये जो है इक्विलिब्रियम जो है शो करता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो अ टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोस, राइट।
फिर आता है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ 2,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोज। ठीक है, ये है आपका ये जो हमने फॉर्मूला बना रखा है, स्ट्रक्चर जो दे रखा है, ये क्या है 2,3,4,6 टेट्रा मिथाइल डी ग्लूकोज। और इसको जो है हम कॉमन नेम इसका क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है ना, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन जब हम HNO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमको सबसे पहले कीटो एसिड मिलता है। ये दिस CHO इज ऑक्सीडाइज टू एसिड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये कीटो एसिड बन जाता है। फिर इसका क्या है, क्लीवेज होता है। ठीक है, क्लीवेज होता है, ये किस पे होता है, C5 और C6 क्लीवेज। C5 और C6 पर जब क्लीवेज होता है, ये C5 एंड C6, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये मिलता है ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है ना, इट इज़ ट्राई मिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। और जब C4 और C5 कार्बन पर, दिस इज़ C4 एंड C5, ठीक है ना, C5 और C6 ये वाले कार्बन है, C4 और C5 पर जब क्लीवेज होता है तो जो प्रोडक्ट है दैट इज़ डाई मिथॉक्सी सक्सेनिक एसिड मिलता है। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, C5 और C6 क्लीवेज और C4 और C5 क्लीवेज में जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूटेरिक एसिड एंड सक्सेनिक एसिड है। ग्लूटेरिक एसिड जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर कीटो एसिड है उससे एक कम कार्बन वाला ग्लूटेरिक एसिड फॉर्म होता है जब हम यहाँ पर क्लीवेज C5 और C6 पोजीशन पर होता है। और यदि सेम जो है जब क्लीवेज जो है C4 और C5 जो है कार्बन पर होता है तो सक्सेनिक एसिड बनता है। सक्सेनिक एसिड का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कीटो एसिड है इससे दो जो है कम कार्बन वाला एसिड हमको मिल रहा है। ठीक है ना, ये है सक्सेनिक। ये दोनों जो है क्या है, क्लीवेज प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बेसिक इसका डिफरेंस है, राइट। फर्दर अदर एविडेंसेस सच एज एक्सरे एनालिसिस एंड एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस also confirms that the aldohexose contain a 6-membered ring। ठीक है, ये तो क्या है, हमने केमिकल्स जो रिएक्शन है जो केमिकली जो है ये प्रूफ करा है कि जो एल्डोहेक्सोस है वो क्या है, 6-membered रिंग है। ठीक है, कार्बन की जो है उसके अंदर 6-membered रिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन हम इसको और भी हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे कि यदि हम इनका एक्सरे एनालिसिस करें या हम इनका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करें तो वो भी ये कंफर्म करते हैं कि एल्डो जो हेक्सोस है वो उसके अंदर 6-membered रिंग प्रेजेंट होती है, राइट बच्चों। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।